ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କିପରି ଆଇସିଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛେ ଏବଂ ଆଇସିଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର କ'ଣ ସେମାନେ ବି ବଳିଆ ସେବା ବି ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ବା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଡିଜିଟାଲ କରିଦେଲେ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମାଜର ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ, ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ କ'ଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପକରଣ ଦରକାର ଏବଂ କେମିତି ବା କେଉଁ ସୋପାନ ଦେଇକି ଆମେ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଲ କରିବା। ତାହେଲେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଉଛି ବା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏମିତି ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେଉଁଠି ବା ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କି ଆମେ ମାନେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଲାଇବ୍ରେରୀର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଉପାୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ ବା ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିଥାଉ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇପାରେ। ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତାର ଉପକରଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫାଇଦା ବି ନେଇପାରୁଛେ। এইটা ହେଉଛି ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପ୍ରବେଶ ହେଇଥିଲା ବା ଆମ ପାଖକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବିକାଶ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଗତ ଇଏରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କେମିତି ତାର ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ ଆସିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରେସନ, ତୃତୀୟ ଜେନେରେସନ, ଆମର 1940, 1950, 1960 ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଥିଲା ତା ପୂର୍ବ ସମୟ ବା ସେ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବିଶେଷ ଭାବରେ, ତ ସେଇ ସମୟର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କହୁଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସିଏ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଆମେ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳେଇ ପାରୁଥିଲେ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମେ ତାର ଉପଯୋଗ କରି ପାରମ୍ପରିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତାର ବଦଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଡ଼କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରିବା ବା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ତ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ରିପୋଜିଟୋରୀ ଏବଂ ବା ଡିଜିଟାଲ କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ କଲେକ୍ସନ। କ'ଣ ବା ଡିଜିଟାଲ କଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ବସ୍ତୁର ଏକ ଅନଲାଇନ ଡାଟାବେସ୍, ଯାହାକି ବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ଏବଂ ଟେକ୍ସଟ ଏବଂ ଆମର କିଛି ଛବି
जोटा आम इमेज बोली कहूचे ऑडियो माने जेमती कि आमर शब्द वीडियो जोटा आम देखिपे एवं किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट आम लाइब्रेरी माध्यम उपलब्ध करे एवं से गुड़ आमर कंप्यूटर माध्यम इंटरनेट सहयोग साहाय्य आम उपभोक्ता मान पाखे पहुँचे भी पारे। तो यही सब यही सब मतलब सोपान कौन हो सब जो जिन गुड़ा को लेकिन आम कहीपर यहाँ हूँ एक डिजिटल लाइब्रेरी परिकल्पना आम जहाँ चिंता करुचे कौ जिनस को आम डिजिटल फॉर्मेट रे आम लाइब्रेरी रखिपर संरक्षित कर तो से सब जिनस को लेकिन आम रखुचे डिजिटल फॉर्म इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में जब आम लाइब्रेरी नहीं रखुचे रखार प्रयास करुचे विनियोग करुचे आमर उपभोक्ता मान सेवार ताहले आम से जिनस गुड़ा से लाइब्रेरी को आम कहीपर यहाँ हूँ एक प्रकार डिजिटल लाइब्रेरी। अन्य अर्थ में जब आम भाविबा देखा तो डिजिटल लाइब्रेरी गुड़िक कौन कौन सब हो कौन कौन करा जाई पारुछि आम ए कौन करुचे ना डॉक्यूमेंट गुड़ी को आम एक व्यवस्थित इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट रे सजेकी रखी पारुचे। ठीक है तो यह को आम इंटरनेट माध्यम देखी पारुचे किंबा आमर जो सीडी रम बोली कहूँ सीडी जो आम पाखे अच्छी मार्केट मिलूँ तो से सीडी रम माध्यम आम गच्छित करके रखिपारे जोटा कि परवर्ती पर्यायर आमर आवश्यक स्थले आम से सब जिनस को देखिपार तार मानने आमर विभिन्न काम आम व्यवहार भी कर। अच्छा ये कौन है ना जो डिजिटल लाइब्रेरी बोली आम कहूचे डिजिटल लाइब्रेरी शब्द प्रथम आमर नासा अमेरिकार नासा जो संस्थाटी अच्छी आमर एरोस्पेस जहाँ सब रिसर्च कर विभिन्न तथ्य आमको सब पठाऊँ आम जापारे देखिपारे तो नासा प्रथम 1994 मसीह यही शब्दटी को व्यवहार करते एवं धीरे धीरे ताहा लोकप्रिय हबरे लगे 1994 मसीह। ठीक है तो माइकल स्टर्नहार्ट डिजिटल लाइब्रेरी प्रथम माने आम कहवा सी होती प्रकल्पर प्रतिष्ठाता सी ही प्रथम तैयारी करते आमको कहू पड़ो भाव पड़ो। तो सी कौन करते ना इंटरनेट माध्यम इंटरनेट को व्यवहार करके सी मुक्त भाव में जोटा आम पाखे उपलब्ध हो पार आम पाखे पहुँची पार से इलेक्ट्रोनिक बही गुड़ी को रखिबारे इलेक्ट्रोनिक फॉर्म रे बही गुड़ी को रखिबारे से प्रथम सक्षम होते जो कहुच्छी सी होती डिजिटल लाइब्रेरी प्रकल्पर प्रतिष्ठाता एवं तांको देखी जानी केमी प्रणाली कौ प्रणाली से सब जिन को करें तो से धीरे धीरे आम पुणी आग को बढ़ीचे जहाँफल कि बर्तमान आज आम माने पाचरे आसिक पहुँची पारिचे। तो डिजिटल लाइब्रेरी को जब देखा यही सब माने को भाषा माने कौन कौन कहीकि आम या सब जापारे देखिपारे डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन डिजिटल लाइब्रेरी विषय में कौन कहते डेलोस डिजिटल लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी विषय में कौन कहते तो विभिन्न संस्था कौन सी माने गोटे जिनिस निज निजर मतामत रखी था। तो से अनुसार आम देखिले तो डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन कहूँ डिजिटल लाइब्रेरी कौन ना डिजिटल संगठित करी से उत्स गुड़ी को प्रदान करुच्ची जोगे दूची विशेषकर विशेषज्ञ कर्मचारी सहित बौद्धिक प्रवेश केमती हम व्याख्या आम केमती एवं बंटन केमती करहब से सब जिनस को तो से अखंडता केमती रक्षा करहब ए सब विषय डिजिटल लाइब्रेरी काम करुच्ची बोली डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन कहते।
ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ସମୟ ସହିତ ସ୍ଥିରତା ମାନେ କେମିତି ରଖି ହବ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ବା ଯେକୌଣସି ଆମର ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ସବୁକୁ ସ୍ଥିରତା କେମିତି ଆମେ ରଖିପାରିବୁ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଫର୍ମରେ ସେଇ ସବୁର ମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ସେଥିରେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛି। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରୁଛି ବା ଆମ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହୁଛି। ତ ଡେଲୋସ୍ ଡିଜିଟାଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସମ୍ପର୍କରେ? ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯାହାକି ଭର୍ଚୁଆଲ ହୋଇପାରେ ବା ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମୃଦ୍ଧ ଡିଜିଟାଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ବା ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ପାରୁଛୁ ବା ଦେଇପାରୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏମିତି ୱେଲନେସ୍କି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସମ୍ପର୍କରେ? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯଦି ବଣ୍ଟିତ ସୂଚନାରେ ସେବା ଦଉଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ଲାଇବ୍ରେରୀର ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦଉଛୁ ତା ବି ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ କିଏ କିଏ ଉତ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବଜାରରେ ବା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ବା ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ। କ'ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରୁଛେ ନା ଯିଏ ଉପଭୋକ୍ତା ଲାଇବ୍ରେରୀକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଲ ହେଇଯାଇଛି ବା ଆମେ ତାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଅନୁସାରେ ବା ଡିଜିଟାଇଜ କରିଦେଇଛୁ ଆମ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବା ଆମେ ଦେଖିଲା ମାନେ ଏ ଭିତରେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀକି ଆସିଲେ ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ବା ଖୋଜି ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଗ୍ରାହକ ମାନେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ ବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଆମଠାରୁ କିଛି ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ଆହୁରି ନା ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ତ ସେଥିରେ 1955 ମସିହାରେ ଡିଜିଟାଲର ସମସ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ସିଏ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ 5ଟି ଉପାଦାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ। ପ୍ରଥମରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏକକ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ସେ ନୁହେଁ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅନେକଙ୍କ ଉତ୍ସକୁ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସ ବୋଲି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ଏବଂ ବିନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଠିକ ନୁହେଁ ବା ଆମେ ସେଇ ବାଟକୁ ବା ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଖରେ ନିହାତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠିକ ଅଛି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବି ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀର
स्वप्न देखा परिकल्पना करवा यहाँ ठीक नुहे भी ना आम कर किसी कम से तो यही सब जिन जो टेक्नोलोजी बोली आम कहे तेणु डिजिटल लाइब्रेरी अनेक उत्स को परस्पर सहित जोगाजोग कर टेक्नोलोजी आवश्यक पड़ता है तेणु टेक्नोलोजी जब आम पाखे ठीक उपलब्ध अच्छी ताहले आम डिजिटल लाइब्रेरी परिकल्पना आम पाखे संभव हो पारे यही लिंक गुड़िक कौन हो लिंक गुड़िक शेष व्यवहारकारी माने जो मानक आम कहे कि इंग्लिश जब आम कहे एंड यूजर माने जी आम लाइब्रेरी उपभोक्ता जी कंप्यूटर सामने बसिकी माने व्यवहार कर लाइब्रेरी से आम कहे कि शेष व्यवहारकारी जदि आम भाषा आम कहले लिंक गुड़िक कौन हो शेष व्यवहारकारी जी कंप्यूटर सामने बसिकी व्यवहार कर लाइब्रेरी को माने देखुं तो से स्वच्छ हो पार दरकार यही लक्ष्य डिजिटल लाइब्रेरी कौन कर सूचना देवाई सर्वभारतीय स्तर में प्रवेश कर डिजिटल लाइब्रेरी संग्रह डॉक्यूमेंट को आम सरोगेट मध्य सीमित न रखी ए डिजिटल कलाकृति अंतर्भुक्त कर पॉसिबिलिटी आवश्यकता से रहूना एमती जदि आम देखिले व्यापक अर्थ रे जदि आम कहे डिजिटल लाइब्रेरी कौन डिजिटल लाइब्रेरी होची एक कंप्यूटरीकरण सिस्टम जहाँकि उपभोक्ता को एक प्रवेशर एक समन्वित माध्यम पाइबापी अनुमति देता एवं केमिति देता ना एक संगठित पद्धति देता इलेक्ट्रोनिक भाव में सूचना मिली थाए एवं तथ्यर एक भंडार पाल्टी थाए एथिरे डिजिटल लाइब्रेरी इलेक्ट्रोनिक्स लाइब्रेरी बोली आम कहीपर एवं आउ थे कौन हो डिजिटल एनालॉग एवं डिजिटाइज फॉर्म सूचना देवाई डिजिटल लाइब्रेरी आम मान साहाय्य एवं सहयोग करते आम केमिति डिजिटल को एनालॉग रे परिणत कर दे पारुछु बा एनालॉग को केमिति डिजिटल ये रे परिणत करा जाय पारुछि एवं कंप्लीट बा संपूर्ण भाव में डिजिटाइज फॉर्म रे केमिति संरक्षित आम रखि पारुछे आम लाइब्रेरी रे तो एई सब जिनिस ऊपर विशेष भाव में गुरुत्व दबाको पड़ुछि जेतेबेले आमे हमर लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी करबा पई भाबुछे तो एथिरे कोन होछि डिजिटल लाइब्रेरी जदि आम करुचे आम लाइब्रेरी को आम जदि डिजिटाइज करुचे ताहले हमर लाभ कोन होछि तो प्रथम लाभ होछि उपभोक्ता जे कोनोसी स्थान रे थिले मध्य भी सूचना पाई पारिबे आम लाइब्रेरी कौन कौन सूचना अच्छी कौन कौन उपादान गच्छित अच्छी संरक्षित अच्छी से सब जिनस को से जेकोसी स्थान में थी भी सी प्रवेश कर जानी भी पारे द्वितीय लाभ कौन हो सूचना को प्रवेश कर जितेबाला सी आमर गच्छित उपादान को से प्रवेश करुँच कौन हो अमला तंत्र ह्रास हो कौन ना से लाइब्रेरी कार्यरत व्यक्ति विशेषकर विशेष आवश्यकता पड़ी न था जो मैंने जस्ट टे पूर्व आम जोटा कथा कहते स्वयं स्वयं माने स्वयं संपूर्ण हो जाती से निजे निजे समस्ते निजर आवश्यकता अनुसार खोजी पारती निज जिनस तेणु बर्तमान से कथा आसूँ लाभ कौन हो उपभोक्ता मैंने जो प्रवेश कर डिजिटल लाइब्रेरी को तो से आम उपर विशेष भाव माने आवश्यकता करूना तेणु अमला तंत्र को ह्रास कर आम कहीपर तो तृतीय लाभ कौन हो सूचना आम पाखे जहाँ रही से निश्चित भाव में समान स्थान में अवस्थित हो पार चतुर्थ लाभ कौन हो कैटलॉग गठन बुझा जरूरी नुहे माने आम जमी आमर जो प्रिंट फॉर्मेट जो आम कहे लाइब्रेरी आम जो
से जो प्रोसेसिंग ये जेतेबेले करूचे तो से सब जिनस कौन ना आम बुझा किसी जरूरी न थाए कहीं ना जो सफ्टवेयर आम काम करें करने को जाऊे से आगुरी से माने से सिस्टम बा से प्रणाली को ऑलरेडी सेठरे ठीक भाव में लिखिक तेणु आमको अच्छे केवल से बक्स रे आम कौन कौन सब प्रयोग करवा कौन कौन सब लिखा से हूँ आम काम तेणु आम बुझा न बुझा ता सागर किसी आमर फरक पड़ो ना से जहाँ लिखाई धर टाइटल तेणु टाइटल जो लिखाई आम बहर जहाँ टाइटल आसूसी आम से लिखिले पेज नंबर केते टोटल पेज केते अछि ना हमर एति पेज अछि ऑथर किए से आम देखिदेले सेटा लिखिदेले तो एई भली तेणु आम तार फॉर्मूला बा तार फॉर्मेट किसी बुझिबा एते जरूरी नुहे आमको जो प्रणाली लिखा कहु आम से देखिए केवल से अनुसार एक कौन दुई कौन ये लिखि पार तो पंचम लाभ हूँ अन्य डॉक्यूमेंट गुड़िकर क्रॉस रेफरेंस जितेबाला होची से व्यवहारकारी को कार्य को आमर जब डिजिटल लाइब्रेरी आम करुचे देखुचे ताहले एटा को बहुत त्वरान्वित हो जाउची। षष्ठ लाभ कौन होची ना संपूर्ण पाठर संधान आमको मिलुची पूरा जेकोसी विषय आम देखा चाहूचे जाना इच्छा करुचे से संपूर्ण पाठर संधान से आम पाइपे एवं सबुठार उपादेय होची सुरक्षित सूचना उत्स गुड़िक विषय आम जापारे को उत्स आमको सूचना मिलूँ तथ्य मिलूँ से सब विषय से सब उत्स गुड़िक संपर्क में आम संपूर्ण भाव में ठीक भाव में आम से जापारे देखी पारे एवं अष्टम हूँ विस्तृत अनुसंधान एवं सूचनार पोषण आम कौन सूचना आम चाहूचे को प्रकार सूचना आमको आवश्यकता अच्छी तेणु विस्तृत अनुसंधान करने को पड़ुचे आम से भितर जो जो तथ्य गंताकर आम बोली कौचे जो जो तथ्य आम पाखे अच्छी आम गच्छित करके रखीचे तो से भितर से समय आम जहाँ जर अनुसंधान करुचे विशेषकर जहाँ को आम चाहूचे करुचे आमर आवश्यक अनुसार आम चाहूचे से जिनस को नवा देखापी तो आम अनुसंधान करुचे अनुसंधान करने सहित से सूचनार विभिन्न पोषण आम करें से को देखिकी देखिक आम से विषय निष्पत्ति नहीं पारे कौटा आम निहाती आवश्यक अच्छी एवं आम कौटा ने आम कम आसूसी आउ कौ जिन को आम पचर नहीं पार तो ये आम आम निजर सुविधा अनुसार निजर इच्छा अनुसार आम विभिन्न तथ्य को आम आमर हिसाब से आमर निज हिसाब से आम कम लगे पार्चे तो डिजिटल कलेक्शन कहले आम कौन बुझुचे एवं डिजिटल लाइब्रेरी कहले आम कौन बुझुचे यही दुईटा को जदि आम परस्पर माने तुलना करिया तो यही दुईटा कौन हो डिजिटल कलेक्शन बा डिजिटल संग्रह कहले आम कौन बुझुचे एवं डिजिटल लाइब्रेरी कहले आम कौन बुझुचे दुईटा जाक एका जिनस ना किसी अलग अलग ना डिजिटल संग्रह बा कलेक्शन बोली आम जोटा कहूचे एटा होची एक कंचा विषय वस्तु जो थे कि जिते कि डिजिटल लाइब्रेरी होची एक सिस्टम ठीक है तो डिजिटल संग्रह होची एक कंचा विषय वस्तु जोटि कि आम कहीपर डिजिटल लाइब्रेरी होची एक संपूर्ण सिस्टम जहाँ जोटा को आम डिजिटल संग्रह को आम जीवंत कर दे था डिजिटल लाइब्रेरी को व्यवहार करी डिजिटल संग्रह गुड़ी को डिजिटल कलेक्शन गुड़ी को आम जीवन प्रदान कर जीवित कर दे था जहाँ सुप्त अवस्था रही जाइए जहाँ अन्य मान पाखे पहुँची पारना अन्य मैंने जानी पारना ये जिनसा ये जगह रही रखा जाए तो आम से जिनस को डिजिटाइज करके इंटरनेट माध्यम हो टेक्नोलोजी जहाँ भी विभिन्न उपाय विभिन्न इलेक्ट्रोनिक फॉर्म आम व्यवहार करी आम से आमर उपभोक्ता मान पाखे पहुँचे पार्छु जहाँकि अन्य प्रांत अन्य प्रकारांतर कहले आम बुझा जे सुप्त जिनस गुड़िक सुप्त इनफर्मेशन तथ्य गुड़िक सब आम पाखे थिला से गुड़िक आम जीवंत करदेलु
तो एहाकु उपयोगी भाବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ପାରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ डिजिटल लाइब्रेरी ताकू साहाय्य करिଥାଏ। तो डिजिटल कलेक्शन होची एक आमे कहले बा देखिले जे एटा होची एक कंचा विषय वस्तु जोटा को कि आमे डिजिटल लाइब्रेरी रो साहाय्य रे बा डिजिटल लाइब्रेरी माध्यम रे आमे से जिनिस गुडी को हमर उपभोक्ता मानक पाखरे आमे पहुंचै पारुछु एवं सेमानंकु से जो इनफॉरमेशन बा से जो हमर तथ्य हम पाखरे रहिला बा कंचा विषय वस्तु बोली हमें कहूचे डिजिटल कलेक्शन डिजिटल संग्रह गुडी को से गुडी को आमे मध्ये डिजिटल लाइब्रेरी माध्यम रे बा सहायता रे आमे विभिन्न संप्रदाय सहित मध्ये जोग करूछु। विभिन्न संप्रदाय कहले कोन एठी हमर मनीष जाति कथा पड़नी एठी हमर लाइब्रेरी उपभोक्ता मानकर संप्रदाय कथा पड़छ बा आमे कहूचे कोन माने के हमर छात्र छात्री से माने होचंदी हमर गोटे संप्रदाय रे जाउचंदी जे अध्यापक अध्यापिका अछंदी से माने हमर गोटे संप्रदाय रे जाउचंदी जो माने विभिन्न को विषय वस्तु को नेकी रिसर्च करूचंदी से माने होचंदी हमर गोटे संप्रदाय रे जाउचंदी एवं आउ जो माने इंडस्ट्रियलिस्ट माने करछंदी से माने को ताको कॉर्पोरेट रिलेटेड जो तथ्य जो दरकार होची से माने भी गोटे संप्रदाय रे जाउचंदी। तो आमे एठी संप्रदाय कहले आमे एयाको बुझुचु जे हम लाइब्रेरी रा उपभोक्ता मानकर को संप्रदाय सब रहिछि एवं से मानकु कोन कोन तथ्य तांकर आवश्यक रहिछि। तेणु जो तथ्य हमर रिसर्चर मानकर दरकार से तथ्य होय त हमर छात्र छात्री मानकर दरकार होई न पारे बेले बेले दरकार है पारे सेमिति किसी माने जो हमर बाध्यबाधकता नै किंतु विशेषतः भाबरे जदि हमें देखिबा जो तथ्य हमर रिसर्चर मानकर दरकार होची से तथ्य होय त हमर छात्र छात्री मानकर आवश्यक न होई पारे एवं जो तथ्य हमर अध्यापक अध्यापिका मानकर दरकार होची से जिंस गुडी को होय त हमर कॉर्पोरेट रो मालिक मानकर दरकार न होय न होई पारे। तो एमिति देखिबा को गले तो ए जो विभिन्न संप्रदाय हमर उपभोक्ता सब रहउचंदी आमे सेमानक पाखरे ए जो डिजिटल कलेक्शन आमे करूछु बा रखिछु तो ए गुडी को आमे डिजिटल लाइब्रेरी रो सहाय्य रे बा ताक माध्यम रे आमे हमर विभिन्न संप्रदाय सहित एहाकू जोडी देई पारछु। ये ला गोटे जिंस आ जदि डिजिटल लाइब्रेरी कथा हमें कहउचे बा भाबुचे बा चिंता करूचे ताले तांकर बा डिजिटल लाइब्रेरी रो मुख्य गुण गुडी कोन बा साधारण गुण कोन एटा होची हमर स्कॉलरशिप शिक्षा दान एवं शिक्षा पई गुरुत्वपूर्ण उत्स गुडी को विषय रे ये विस्तृत तथ्य संग्रह करथे। डिजिटल लाइब्रेरी कथा जे हमें कहबा ताले एई परि भाबरे हमें विस्तृत तथ्य को आमे संग्रह करि परिथौ। द्वितीय रे आमे जे देखिबा ताले एथरे समस्त प्रकार रो उपभोक्ता मानक पई सहज रे मते उपलब्ध हे कर जो जिंस के बे मु एबे ही कहि जे सेही माध्यम रे बा सेही जो विभिन्न संप्रदाय रा हमर उपभोक्ता माने अछंती सेही मानकु कोन कोन केमति दरकार आमे ताको मते सहज रे उपलब्ध हे पारुछ। तृतीय रे जदि आमे देखिबा ताले वृत्तिगत मानक द्वारा परिचालित एवं रक्षणाबेक्षण मध्ये हे पारुछ। वृत्तिगत माने जो माने लाइब्रेरी रे कार्यरत व्यक्ति विशेष तो सेही मानकु नै कि एटा परिचालित होउची एवं एहार रक्षणाबेक्षण मध्ये हे पारुछ। थरे रक्षणाबेक्षण माने गच्छित हे सारला परे आमे से जिनिस गुडी को जहां हमर रहिला डिजिटल लाइब्रेरी रे आमे से सब को हमर उपभोक्ता मानको सहज रे सेवा जोगै देई पाछु। एथरे ता पर कोन होइची ना डिजिटल लाइब्रेरी गुडी कर प्रकार कोन कोन कुकु प्रकार रे आमे ताकू चिंता करछे बा आमे ताकू भाबुचे जे डिजिटल लाइब्रेरी रो विभिन्न प्रकार रो होइथाय बोली कोन कोन होइथाय जदि सेमति होउची बा देखुचे आमे जे डिजिटल लाइब्रेरी रो विभिन्न प्रकार रा ताले कोन कोन ना डिजिटल लाइब्रेरी 1 बा 1 बोली आमे कहउचे एवं डिजिटल लाइब्रेरी 2 बोली मध्ये आमे कहउचे एमि दुई प्रकार रा डिजिटल लाइब्रेरी विषय रे आमे जदि चिंता करबा बा भाबिबा तो आमे डिजिटल लाइब्रेरी गुडी को एई दुई प्रकार रे चिंता करबा कोन कोन ना एटा होची गोटे माने
डिजिटल एक डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव बोले हम जोटा कहूचे डीएलआई 1 एवं डीएलआई 2 यही माने डीएलआई 1 एवं डीएलआई 2 रो विशेषत्व को नहीं बा एमानकर एक अंश भाव नहीं कि आमर अमेरिका रे जो डिजिटल लाइब्रेरी गुडिक अछि से गुडिक विकसित होइतिला जुक्त राज्य रे कोन होइतिला ना ई लाइब्रेरी हम जोटा कहछि जदि इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कथा हम कहबा से प्रोग्राम रे डिजिटल लाइब्रेरी गुडिक मध्ये विकसित होइछि व्यक्तिगत अनुष्ठान गुडिक द्वारा जो डिजिटल लाइब्रेरी गुडिक निर्मित होइतिला से जातीय लाइब्रेरी अंश होई पारे बा डिजिटल लाइब्रेरी जा विश्वविद्यालय रो मध्ये एक अंश भी होई पारे किंबा अवधि अनुसार आमे से गुडी को मध्ये उत्पत्ति देश मानक माने को देश रो सेटा उत्पत्ति हेछि से अनुसार मध्ये आमे ताको विभक्त मध्ये कर दे पारे तो एही परि भाबरे विभिन्न माने प्रकार रो जो डिजिटल लाइब्रेरी आम पाखरे पहुंच परछ बा आमे देखि परछ बा जानि परछ जे एही विभिन्न प्रकार रो डिजिटल लाइब्रेरी सब आम पाखरे अछि तो डिजिटल लाइब्रेरी प्रकार जदि पुणी आउथरे देखिबा तो प्रारंभिक डिजिटल लाइब्रेरी गुडी को एलिनोर गुटेन्सबर्ग करथिले एवं आनुष्ठानिक प्रकाशन रो डिजिटल लाइब्रेरी गुडी को तथा एसीएम ईल ए जातीय लाइब्रेरी गुडी करे डिजिटल लाइब्रेरी रो विकास ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा करा जायतिला कांग्रेस थॉमस जदि हम कहबा ता एटा होची कनाडा रो डिजिटल लाइब्रेरी रो परिकल्पना बा अंश विशेष विश्वविद्यालय रे डिजिटल लाइब्रेरी गुडी को जेमति कि बरेल डिजिटल लाइब्रेरी सनशाइन बोडोलियन लाइब्रेरी तो ए सब गुडी को होची विश्वविद्यालय सहित जड़ित डिजिटल लाइब्रेरी एवं डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट कैलिफोर्निया कथा हम देखिबा ताल डिजिटल लाइब्रेरी डिजिलिब आईजेम्स सेटिस तो एगुडी को मध्ये एक प्रकार रो डिजिटल लाइब्रेरी रो अंश विशेष बा अंतर्भुक्त एवं विशेष सामग्री रो जदि हम डिजिटल लाइब्रेरी गुडी को कथा देखिबा ताले से होची अलेक्जेंड्रिया इन्फॉर्मेट्रिया एवं ग्रेंकर एई सब जो डिजिटल लाइब्रेरी कथा हम आलोचना करूचे ए सब थरे हम कोन देखि परिया ना विशेष सामग्री विषय रे बा विषय सामग्री गुडी को विषय रे संपूर्ण भाव रे हम तथ्य ए जिंस ए डिजिटल लाइब्रेरी माध्यम रे पाई पारि ठीक अछि तो ए गुडी को होची वर्तमान तार यूआरएल हमें जदि देखिबा ब्रिटिश लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी रे हमें ए जा लिखाई छी वर्तमान हमर स्क्रीन रे हम देखि परछे तो ए से यूआरएल को हम जदि टाइप करिबा ताले हम सीधा सळग से लाइब्रेरी सहित संयोग होई पारिबा बुझि अछि थॉमस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डिजिटल लाइब्रेरी तो ए यूआरएल को जदि हम टाइप करूचे ताले हम सीधा सळग ता सहित मध्ये जोगाजोग कर पारिबा कैलिफोर्निया डिजिटल लाइब्रेरी रो यूआरएल होचे एटा गूगल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया तार मध्ये होची एटा एवं गुटेनबर्ग जदि देखिबा ताले होची ता ए यूआरएल माध्यम रे हम गुटेनबर्ग डिजिटल लाइब्रेरी सहित जोगाजोग कर परिबा IEEE इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी बोली जोटा हम कहूचे ताकू मध्ये हम ए यूआरएल माध्यम रे संयोग कर परिबा इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डिजिटल लाइब्रेरी को मध्ये हम ए यूआरएल देखि जोगाजोग कर परिबा द न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट द ब्रॉडबैंड डिजिटल लाइब्रेरी ऑस्ट्रेलिया तो ए सब यूआरएल को देखि हमें से माने जो निर्दिष्ट डिजिटल लाइब्रेरी सहित हमें जोगाजोग कर पारियो ए 9 नंबर रे जो ब्रॉडबैंड डिजिटल लाइब्रेरी ऑस्ट्रेलिया रे अछि बोली हमें कहूचे भाई यूआरएल देखि हमें सीधा सड़क जोगाजोग कर पाछे एथुरु हमें कोन पाइबा ना एथुरु हमें क्रिकेट संबंधी क्रिकेट खेल संबंधी जहां भी तथ्य बा ब्रॉडबैंड को रिलेटेड क्रिकेट खेल सहित संपर्कीय बा संपर्कित जहां भी किछि तथ्य हमें सेही वेबसाइट बा सेही डिजिटल लाइब्रेरी रो हमें पाई पारियो ठीक है
तो ब्रिटिश लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम कौन जदि आम ता विषय रे आलोचना करबा जे से कौन कौन करूची बा ता देरु आम कौन कौन तथ्य पाइबा बा हमर से कौन उपकार रे आसीबो। तो ब्रिटिश लाइब्रेरी रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर BLRIC जदि आम कहबा एथरे डिजिटल लाइब्रेरी रा गवेषणा कार्यक्रम ब्रिटिश लाइब्रेरी संग्रह ऊपर आधार करथाय एवं यह एक डिजिटल लाइब्रेरी रा सूचना सेवा मध्य प्रतिष्ठा करूची। प्रथम तापर जदि आम भाबिबा बा देखिबा ताले उपयोगकर्तांकर जो माने से लाइब्रेरी को उपयोग करूचंदी जेमति कि आम कहबा जे लाइब्रेरी उपभोक्ता से मानकर आवश्यकता को अनुसंधान करी बा तांको अनुसंधान उपरे वर्तमान प्रोग्राम को से माने व्यापक भाव में आधारित करूचंदी एवं विशेषतः जेउठारे सूचना पाइबा सहज होई न थाए एक निर्दिष्ट वृत्ति द्वारा इंटरनेट व्यवहार रे एक आग्रह से माने माने सेटा करे छे माने सेटा से माने गोटे करे पारती बा जोठी कि जदि आमे किछि निर्दिष्ट सूचना आमे पाई न पारुछु बा किछि सहज रे आमे देखि पारनु बा जानि पारनु कोन से एक निर्दिष्ट तथ्य से जगह से कौन होची ना इंटरनेट को व्यवहार करके माने गोटे उपभोक्ता मान बा उपयोगकर्ता मध्य रे एक आग्रह से माने सृष्टि करांती जे एई तथ्यटी आपण एथरे इंटरनेट माध्यम रे खोजंतु बा देखंतु जे एटा अन्य को जगह रे उपलब्ध अछि कि एई बली तो विश्लेषकक मन रे मध्य सर्वोच्च प्रसंग गुडी मुख्य स्रोत बा सूचना वृत्तिगत प्रतिफलन को प्रतिफलित मध्य करथाय नेटवर्किंग उत्स गुडी रे प्रवेश करिवा पई मध्य ये विस्तार करथाय बा हम सहयोग भी करथाय उत्स जोगान रे को उत्स केउठारे उपस्थित अछंती बा हम पाखरे अछंती तो सेही उत्स गुडी को जोगेइबा व्यापक स्पेक्ट्रम रो डिजिटल उत्स गुडी कर मध्य ये अंतर्भुक्त होइथे। बिल डिजिटल लाइब्रेरी कथा रे जदि हम देखिबा तो बिल डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम रे लाइब्रेरी एवं अभिलेखागार संप्रदाय मध्य रे ये साधारण अपेक्षा डिजिटल सामग्री रो अधिग्रहण को एवं विस्तार पई एक समाधान प्रदान करूची केना लाइब्रेरी होची एक प्रकार एवं अभिलेखागार रो भूमिका मध्य होची एक प्रकार तो तेणु लाइब्रेरी सहित अभिलेखागार माने जहाँ आमर जो संपर्क रहिबा कथा तो सही संपर्क को माने केमिति बा आमे ताकटू केमिति जिंस आनी परिबो बा से माने आमटू केमिति जिंस आनी परिबे जदि डिजिटल माध्यम रे उभयर संरक्षित रखा जायछि बा गच्छित रखा जायछि तो से सब डिजिटल सामग्री रो अभिलेखागार रो एवं लाइब्रेरी मध्य रे केमिति संपर्क रहिबो बा केमिति आमे ताको अधिग्रहण करि परिबो बा से माने आमटू मध्य अधिग्रहण करि परिबे एई सब को विस्तार पई एक समाधान मध्य प्रदान करूछि हमर इंटरनेट सॉरी डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है तो कैलिफोर्निया डिजिटल लाइब्रेरी विषय रे हम जदि देखिबा ताले 1997 मसिया रे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रे कैलिफोर्निया डिजिटल लाइब्रेरी प्रतिष्ठा करा जायथि यूनिवर्सिटी कैंपस रे एवं सेमाने सेवा करुवा संप्रदाय पई विश्व ज्ञान को प्रवेश करिवार जो मिशन से माने नै के आसीथिले बा से माने चिंता करूथिले तो यह हूँ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लाइब्रेरी गुडी को समर्थन करुछि। तो डिजिटल संग्रह रो विकास करिवा पई एवं ताको ठीक भाव में परिचालना करिवा पई एवं विद्वान प्रकाशन रे नव सृजन एवं डिजिटल सूचना रो दीर्घ मियादी संरक्षण उपरे गुरुत्व देगी एई सीडीएल निजर एक स्वतंत्र कार्यक्रम मध्य बजाय रखी। सीडीएल कौन ना कैलिफोर्निया डिजिटल लाइब्रेरी सीडीएल बुझियो जी त एई होचे हमरो जे सीडीएल बा हमरो कैलिफोर्निया डिजिटल लाइब्रेरी कौन होची ना 1997 मसिया रे जदिओ से तयारी कराइची बा प्रतिष्ठा कराइची एबे से कौन करूची ना ये वर्तमान प्रकाशन रे नवसृजन एवं डिजिटल सूचना रो दीर्घ मियादी माने
आगामी दिन मानकरे आगामी समय रे केमिति याकु संरक्षण करा जाय परिबो एवं एक स्वतंत्र कार्यक्रम मध्य केमिति याकु नेकी करा जाय परिबो त एई दुईटा स्वतंत्र कार्यक्रम को एवं संरक्षण को एई दुईटा को गुरुत्व दे वर्तमान कैलिफोर्निया डिजिटल लाइब्रेरी ता काम आगे चली करी चली जो जहाँ फल कि एई दुईटा केमिति ठीक भाबे ताको भितरे समन्वय रक्षा करि पारिबे। तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी कथा यदि आमे कहबा ताले कोन होची ना हमर जो निस्केयर बोली आमे कहूचे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स निस्केयर द्वारा कार्यकारी होउथबा पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी होची एक जणा सुना भारतीय डिजिटल लाइब्रेरी पदक्षेप। ठीक अछि यह एक यार मुख्य उद्देश्य होची हमर आयुर्वेद यूनानी एवं सिद्ध योग नेचुरोपैथी एवं आदिवासी चिकित्सा जोटा कि हमर पुरातन प्रणाली रे हमें सब चिकित्सा पद्धति रे जदि हमें माने हमर जेजे बापा एवं तांको बापा को समय कथा द्वारा चिंता करबा माने अति कम रे हमर 50-60 वर्ष तळकु जदि हमें चिंता करबा से समय कथा को ताले सेते बेले वर्तमान हमर जेंति स्वास्थ्य पर सरकार ध्यान दौचंती बा हमर चाली विभिन्न रिसर्च एवं किछि नय नय तथ्य मते प्रतिदिन आछि तो सेही समय रे सब एते बहुल भाबरे नथिला बा हे नथिला तो सेही समय रे चिकित्सा प्रणाली केमति थिला एवं ता सहित एबे जो हमर योग सिद्ध यूनानी आयुर्वेद ए सब प्रणाली माने केमति सब होउची बा सेथरे कोन कोन करा जाउची एवं सेटा करबा द्वारा हम शरीर रे कोन उपकारिता होउची सेटा को जते हम प्रतिदिन अभ्यास रे करूछु ताला हम कोन लाभ पाउछु तो ए सब जो जिनिस गुडी को एटा होउची हमर निष्केयर द्वारा जोटा परिचालित होउची ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एथरे एटा उपलब्ध अछि बा एथरे हम सेटा पाई परबा। 2001 रे तत्कालीन केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार वैज्ञानिक एवं शिल्प अनुसंधान परिषद बोली हम जोटा कहूचे सीएसआईआर एक सहभागिता गठन होइथिला। एही सहभागिता द्वारा एई माने मध्य कोन कले ना एई माने 148 रो अधिक डोमेन जोटा कि थिला हम माने उपलब्ध थिला डोमेन रो कार्य को 34 मिलियन रु अधिक पृष्ठा। ठीक अछि ठीक भाबरे देखिबा माने हम ये करबा बा मन रखिबा जे 148 रु अधिक सार्वजनिक डोमेन रो कार्य को 34 मिलियन रु अधिक पृष्ठा रो डॉक्यूमेंटेशन रे डिजिटाइज करिथिले। ठीक अछि जहा 5टी भाषा रे मध्ये अनुवाद करा जायतिला एवं या स्पेन भाषा रे करा जायतिला फरासी भाषा रे मध्ये करा जायतिला जर्मन भाषा रे मध्ये करा जायतिला जापानीज लैंग्वेज रे बा जापानीज भाषा रे मध्ये करा जायतिला एवं इंग्रजी रे मध्ये करा जायतिला। तो एई परि 5टी भाषा रे 148 टी सार्वजनिक डोमेन रो कार्य को 34 मिलियन रो अधिक पृष्ठा रे हमें बा सीएसआईआर एवं हमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीएसआर सहित जो सहभागिता रे एतु एई जिंस गुडी को डिजिटाइज करा जायतिला। तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी रे 10 लाख जदि हमें देखिबा यूनानी सूत्र पाइबा 12,000 सिद्ध सूत्र पाइबा 80,000 भलिया आयुर्वेदिक सूत्र ऊपर मध्य एथरे तथ्य अंतर्भुक्त रहिछि। कोथरे रहिछि ना हमर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जोटा निष्केयर द्वारा परिचालित होछि हमरी भारत रे हमें सेथरे एई जिंस गुडी को पाई पारिबा। तापर जदि हमें आसीबा ताल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हम भारत रो बा इंडिया बोली कहउछ हम नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंडिया। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को जदि हमें देखुचे या होछि एक विंडो प्लेटफॉर्म जो थरे की ई लर्निंग माने इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बोली हमें कहउचे हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण माध्यम रे हमें सेतरे पाठ पढि परछे बा तथ्य पाई परछे ई लर्निंग
एवं शिक्षा समस्त उपलब्ध कराई पारुछि। यह भारत एवं विश्वर समस्त जनसंख्या डिजिटल रिपोजिटरी जो मैंने व्यवहार करुचंती से सबको आनिबा उद्देश्य रे बा जोगाजोग करबा उद्देश्य रे एटा होछि एक शिक्षणीय उत्सव। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भारत जो आम आलोचना कर देखुचे तो ये ई लर्निंग एवं शिक्षा जहाँ जहाँ उपलब्ध हवा दरकार बा अवस्थिति रहिबा दरकार से भारत एवं भारत बाहर जो मैंने चाहते बा देखुं समस्त लोकों यह एक शिक्षणीय उत्सव हो पारि। तो एकीकरण प्लाटफर्म जदि आम देखा विद्यालय कॉलेज विश्वविद्यालय शिक्षक छात्र अध्यापक भिन्नक्षम छात्र तो एमती आमर विभिन्न संप्रदाय जो आम कथा होते आलोचना करुले विभिन्न संप्रदायर उपभोक्ता बा उपयोगकारी मानक देखुचे तो से नहीं शिखा जार सब इच्छा अच्छी एमानक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी उद्दिष्ट अटे। सूचना एवं जोगाजोग माध्यम शिक्षा उपर एक जातीय मिशन यही नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हेउची एक सूचना एवं जोगाजोग प्रजुक्ति विद्या माध्यम नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन अधीन मानव संबल विकास मंत्रालय एक प्रकल्प। यहाँ आम भारत सरकार एक प्रकल्प यह आमर सूचना एवं जोगाजोग प्रजुक्ति विद्या बोली हम जोटा कहूँ जब इंग्लिश रे कहले NMEICT यह को माध्यम करिकी आम भारत सरकार आमर जो मानव संबल मंत्रालय अच्छी यहाँ प्रकल्पटी को योजना कर प्रस्तुत कर। तो मे 2016 में यहाँ माने प्रथम आरंभ होता पायलट फॉर्म रे गोटे लाइब्रेरी उन्मोचित होता तापर धीरे धीरे यहाँ आग को आम बढ़ुचे एवं 19 जून 2018 यहाँ से जी आम मानव संबल मंत्री थे श्रीजुत प्रकाश जावड़ेकर ये 19 जून 2018 मसीह यही नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंडिया बोली हम जोटा कहूचे यह देश उत्सर्ग करते जदिव 16 यहाँ एक गोटे पायलट प्रोग्राम हिसाब से गोटे आरंभ करा उन्मोचन करा किंतु यहाँ उत्सर्गीकृत है भारतीय मानक आमर देशवासी देश यहाँ है के 19 जून 2018 मसीह एप्रिल 2019 सुधा जदि आम देखा ताहले नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंडिया रे यार संग्रहालय संख्या एतिकी हो जाइए माने 4.5 कोटी ठीक है। तो जो थे कि इंग्रजी रे आम जब देखा तार 1,50,000 माने डॉक्यूमेंट बोली हम जब कहबा ताले उपलब्ध अच्छी NDLI रे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंडिया रे जदि आम देखा अवश्य यहाँ भी हुए तो एक फिगर बा संख्या परिवर्तन हो थाई पारे यहाँ तो टिके पूर्वर तथ्य तो एबे हुए तो एतरे किछि परिवर्तन हो थाई पारे किंतु जहाँ हम पाखरे माने एक माने अच्छी तथ्य जे सही सुधा माने सही मसिया सुधा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रे 1,50,000 इंग्रजी डॉक्यूमेंट थी। तो ये सब को देखिकी जदि आम देखुचे ताले आमे आगु को कौन करिवे माने डिजिटल लाइब्रेरी रो भविष्य रे आम कौन करा जाय परिबे। तो साहित्य रे डिजिटल लाइब्रेरी शब्द बहुल भाव में व्यवहृत हो पारुछि। ब्रिटेन ने डिजिटल लाइब्रेरी गवेषणा समय रे एक नूतन शब्द हाइब्रिड लाइब्रेरी बोली देखा जायतिला। हाइब्रिड लाइब्रेरी मध्य धीरे धीरे प्रचलित होबारे लागिछि। तो एक हाइब्रिड लाइब्रेरी को एक लाइब्रेरी भाव में व्याख्या करा जायछि कोठी ना जेउठारे डिजिटल एवं मुद्रित सूचना उत्स गुड़िक विद्यमान अछि एवं एक समन्वित सूचना सेवा स्थानीय तथा दूर दूरांतर उपलब्ध हो पारुछि।
तो हाइब्रिड लाइब्रेरी को जदि आम चिंता करवा ताहले आमे भाबिबा बा कहिबा जे भविष्य रे बा आगु को जदि आमे देखुचे ताहले ए जो डिजिटल लाइब्रेरी परिकल्पना को नहीं आम पाखरे जहाँ मुद्रित सूचना अच्छी बा तथ्य अच्छी बा संग्रह आमे करिचे तो सही दुईटा को जदि मिसै के आमे किछि आउ नुआ जिनिस तयारी करिया को जाउछु बा समन्वय रखुछु बा दुई उभयकर समन्वय रे आमे किछि तथ्य नुआ तथ्य दबा को चाहूछु ताले सेटा को आमे कहि परिबा जे हाइब्रिड लाइब्रेरी तो शिक्षादान शिक्षा एवं मानव विकास रे डिजिटल लाइब्रेरी डिजिटल संग्रह एवं अन्य सूचना सेवा गुड़िकर भूमिका रही एमती जदि देखिले तार विकास उत्स एवं शिक्षा उपरे सूचनार जो उत्स रही सेवा किपरि अंशीदार हो पारिबो जोटा को कि आमे प्रथम अवस्था मध्य शेष अवस्था पर्यंत एक समग्र मानव जीवन काल विस्तार बोली विवेचना करता। तृतीय कथा जदि आमे देखिबा ताले एक समृद्ध अनुसंधान रो एजेंडा आमे तैयारी कर परिबा जोटा कि साहित्यिक एवं प्रमाण को लेखक विश्लेषण एवं पुनः व्यवहार सहित संयोग कर परिबा जहा वर्तमान सुधा मते आमे करी आसुछु माने कोन एक उदाहरण स्वरूप आमे देखि परिबा जोटा कि पंडित लेखक एवं जोगाजोगर अभ्यास मध्यरे परस्पर प्रतिक्रिया एवं अन्य पटे जदि आमे देखिबा ताले वृत्तिर परिवर्तनर अभ्यास जहाँ हमको विज्ञान एवं ई बा हमर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोली कहूचे ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांश को व्यवहार करके आमे जो अनुसंधान विनियोग करूचे ता द्वारा स्वीकृति प्राप्त होइथिबा एवं त्वरान्वित होई पारुथिबा विचार को हमको देखिबा को पड़ो। तो आमे आगु को जदि देखुचे बा ए जो डिजिटल लाइब्रेरी रो भविष्य को आमे जदि देखुचे बा आगु को जदि आमे परिकल्पना करूचे ताले एई जिनिस गुडी को हमको निर्दिष्ट भाव में ध्यान दबा को पड़िबो। तापर होची हमर ये है डिजिटल लाइब्रेरी संपर्क रे सूचना वर्तमान आसुची जे आमे कु प्रक्रिया रे आमे डिजिटाइजेशन करबा हम पाखरे जहां उपलब्ध अछि जिनिस आमे से सब जिनिस गुडी को केमिति डिजिटाइज करियो ठीक है हम पाखरे कोन कोन अछि ई जर्नल ई बही एपरि जो विभिन्न तथ्य हम पाखरे रहउची तो से सामग्री को नै कि कोन आमे टेक्नोलॉजी व्यवहार करिवो बा कोन आवश्यकता रही आमर कहा ऊपर निर्भर करिवो जे करी कि आमे सेडा को डिजिटाइजेशन करिवो। तो जब विभिन्न समस्या मध्य आमर आसी पारे हार्डवेयर रो प्रॉब्लम समस्या होई पारे सॉफ्टवेयर रो मध्य प्रॉब्लम भी किछ होई पारे को फाइल माने आमे को प्रकार रो फाइल तयारी करिवो ता भी एक समस्या होई पारे हम पई। तो थरे गोटे फाइल हेई गला पारे ताको आमे संकोचन करबा दरकार कि बा प्रसारण करबा दरकार कि काहे कि ना जल्दी से फाइल का छोट हो जाय छै हमको सहज रे दिसुनी ठीक भाबरे तो हमको टिके ताको और बड़ करियो पड़ो से फाइल माने साइज का आगे बड़ करियो पड़ो जदि हमें देखलु जे करला भीतर जदि फाइल टी बहुत बड़ हो जाय छै ता ताको टिके संकोचन भी करियो पड़ो माने जोटा कि प्रकृत रे बा ठीक भाबरे हमको देखा जाय परिबो। तो एमती बहुत किसी समस्या मते आसीबो जेतेबेले डिजिटाइजेशन प्रोसेस रे हमें जिबा बा प्रोसेस करबा तो सेही सब जिनिस रहउची। तो हमर जदि देखुचे हमें कोन करबा तो गार्टनर को जो शब्दकोश रही सेथरे से कहूची जे डिजिटाइजेशन प्रोसेस कोन ना डिजिटाइजेशन होची हमें एनालॉग रु डिजिटल फॉर्म को परिवर्तन करबा जोटा हमरा एनालॉग फॉर्म रे अछि सेटा को हमें डिजिटल फॉर्म को जदि आनि परछे ताले सेटा होची हमरा डिजिटाइजेशन बा सेटा को जदि हम संग्रह करके रखुचे हमर लाइब्रेरी ताले सेटा होची डिजिटल लाइब्रेरी। अन्य एक उपाय से कहउचंदी जे सेतरे कोन ना डिजिटाइजेशन एक एनालॉग प्रक्रिया नै थाए एवं प्रक्रिया रे कोनोसी भिन्न प्रकार रा परिवर्तन जदि हम न करूचे ताहा को मते डिजिटल फॉर्म रे परिवर्तन करथाय। तो विशेष भाव में कहया को गले डिजिटाइजेशन प्रोसेस होची हम एनालॉग प्रक्रिया रो डिजिटल फॉर्म को आनिबो सेटा होची विशेष भाव में हमर डिजिटाइजेशन प्रोसेस बा माने प्रोसेस रे हम मुख्यतः सेया ही करबा को पड़थाय प्रथम एनालॉग फॉर्म रो हमको डिजिटल फॉर्म को आनिबो पड़े। तो हमें कौन करूचे केमती करबा हम पाखे जो हार्ड कॉपी अछि बा हम पाखे जहां भी संरक्षित अछि ये रे
ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ପଠନୀୟ ଫର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ବିକଳ୍ପ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ କି ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କି ଶବ୍ଦ କି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତିଆରି କରୁଛେ। ଇମେଜ ଫାଇଲ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନିଂ କରୁଛେ ଏବଂ ସ୍କାନିଂ କଲା ପରେ ତାକୁ ଧରି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ରଖିପାରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ସଂରକ୍ଷିତ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକର ଓସିଆର ଇମେଜ ଫାଇଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖୁଛେ। ଓସିଆର କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ଟିକାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେକଗ୍ନିସନ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସ୍କାନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ ହୁଏତ ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା କରୁନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟଟା ମାନେ ପ୍ରୋସେସଟା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଫର୍ମାଟ ବୋଲି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ OCR ଅପ୍ଟିକାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେକଗ୍ନିସନ। ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରଖୁଛେ ବା ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ତ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବା ଦରକାର ବା ତାକୁ ସେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ଭିତରେ ହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବା ପାହାଚ ଦେଇକି ଗଲେ ଆମେ ଆମ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଲ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ସ୍କାନିଂ ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମେ ସ୍କାନ କରିବା। କେମିତି କରିବା ବା କ'ଣ କ'ଣ ସୋପାନ ଦେଇକି କରିବା? ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ସ୍କାନର ବେଡ୍ ଉପରେ ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଡୋବ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟଟି ଆମ ପାଖରେ ଇନଷ୍ଟଲ ଥିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେଇଟାକୁ ଖୋଲିବା। ସେଇଟା ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ତାକୁ ସ୍କାନ ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ସ୍କାନ ହେଇକି ସେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ପୃଷ୍ଠାଟି ବା ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଆମ ପାଖରେ ଡିଜିଟାଇଜ ହେଇକି ରହିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ଅନୁରୂପ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଯେମିତିକି ସ୍କାନର ଏବଂ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ରେକର୍ଡର ଯଦି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ରେକର୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଖିପାରିବା। ତ ଏଇ ମାନେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଆମ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ବା କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବା। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କେମିତି କରିବା? ଆମର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖୁଛେ डिजिटल वीडियो को आमे कैप्चर केमती करबा। तो डिजिटल वीडियो को डिजिटल सिस्टम रे देखा जाउथबा किबा मैनिपुलेट जदि आमे करा जाउथबो बुझाय कोन होची ना बेले बेले केवल डिजिटल टेप फॉर्मेट रे गच्छित थाए वीडियो एवं वीडियो टी हुए तो मूलतः एक एनालॉग उच्च सामग्री को डिजिटाइज होई थाई पारे। कंप्यूटर किंबा या सीधा सड़क एक डिजिटल टेप फॉर्मेट रे गच्छित मत होई थाई पारे। तो डिजिटल सिस्टम रे देखा जाउथबा किंबा मैनिपुलेट करा जाइथबा वीडियो को मत यह बुझाई थाए। तो उदाहरण स्वरूप एक कंप्यूटर रे किंबा बेले बेले केवल डिजिटल टेप फॉर्मेट रे यह गच्छित होई रहता है। ठीक अछि किंतु वर्तमान कोन होची ना एई डिजिटल टेप फॉर्मेट ऊपर आमे बेसी भरोसा करूछु। जदि वीडियो को आमे डिजिटाइज करबा को चाहू बा संरक्षित करि रखिबा को चाहू भविष्य रे व्यवहार करबा पय ताले आमे साधारणतः भाबरे बा पारंपरिक भाबरे जदि आमे कहिबा ताले डिजिटल टेप फॉर्मेट केवल वृत्तिगत स्तर रे उपलब्ध होची बा थिला D1 और डिजिटल बेटाकम इत्यादि या को जदि आमे देखिबा किंतु वर्तमान किछि डिजिटल टेप फॉर्मेट रहउची जा ऊपर आमे बेसी निर्भर करछे। या को नेकी आमे हमर वीडियो को डिजिटाइज करि पारछु। तो वीडियो डिजिटाइज हबार प्रोसेस कोन माने को सोपान रे आमे करछु। तेनो प्रथम रे होची माने पदक्षेप एमिति एक आमे नबा दरकार जोठी की कैम कोडर पर एनालॉग डिजिटल डिवाइस रो धरा जाइतबा विभिन्न तथ्य को आमे प्रक्रियाकरण करि परथौ एवं मीडिया प्लेयर जोटा कि उभय हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर ऊपर आधारित होइताय एवं हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दीटा जाको मत ताकू अनुमति भी देताय ताकू सपोर्ट करूथाय। तो या द्वारा बुझिले कोन हो ना विभिन्न फाइल फॉर्मेट रे आमे एगुडी को संचय करि रखिता बा हम पाखरे स्थिर भाबरे रखि परथौ। तो एगुडा को होची कोन होची ना हमर
डिजिटाइजेशन जदि हार्डवेयर कथा आम चिंता करवा जिनस हूँ आम पाखे रहा दरकार एवं सॉफ्टवेयर जदि कौन कौन आमको दरकार बोली भाविबा ताले एटा होची हमर वीडियो लान दरकार वर्चुअल डीओपी दरकार एवं एडोब फ्लैश मीडिया एनकोडर मध्य दरकार जहाँ जो माध्यम रे कि आमे वीडियो गुडा को डिजिटाइज करके हम पाखे रखि पारि तो वीडियो डिजिटाइजेशन कले तार उपादेयता कौन रोचे एवं आमे भविष्य एटा यूज कर परिबा आजिकल जेमति हमर एनिमेशन नै पारुची विभिन्न गेम मध्य हमर आमे देखि पारुचे बा खेली पारुचे मते ऑनलाइन रे विभिन्न जो हमर मोबाइल माध्यम रे हो कंप्यूटर माध्यम रे हो आमे खेली पारुचे विभिन्न चलचित्र मध्य आमे देखि पारुचे तो एई जिंस गुडी को मते आमे ठीक भाबरे सेही अनुसार देखि पारे तापर ऑडियो सेमति ठीक सेही एका प्रणाली जे आमे जेमति वीडियो जे से बोली भाबरे ऑडियो को मते हम रखि परिबा एवं ऑडियो को मते पुनर्बार आमे व्यवहार मते करि परिबा एथिरे जे ऑडियो रिकॉर्डिंग केमति होची हमर एसएसडी कार्ड केमति करि परचे स्टोरेज मीडिया रे केमति रखि परचे यूएसबी माध्यम रे मते केमति आमे माइक्रोफोन को व्यवहार करके ऑडियो को मते कैद करि परचे बा इंग्लिश रे कहले आमे कैप्चर करि परचे तो एई सब जिनिस गुडी को जो आमे देखुचे ताकू मते आमे कोन करचे माइक्रोफोन धरि व्यवहार करतवा शब्द को आमे विभिन्न समय रे डीवीडी कंपैक्ट डिस्क एवं डीएटी किबा हार्ड ड्राइव रे मते आमे गच्छित करके ताको रखि पारुचे परवर्ती पर्याय रे व्यवहार करिया पय एवं डिजिटाइजेशन उपकारिता कोन आमे विभिन्न समय ताको व्यवहार करि परिबा परवर्ती समय रे व्यवहार करि परिबा अन्य का मते देखै परिबा अन्य का मते साहाय्य करि परिबा एया होचे हमरो माने डिजिटाइजेशन करिवार उपकारिता एवडा होची तांकर जो फॉर्मेट गुडी को फॉर्मेट रे आमे ताको स्टोर करके रखि परिबा ठीक है ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग केमती करछे हमें सेटा देख परिबा फाइल फॉर्मेट कोन रही छी हमर माने विभिन्न कंटेंट को क्रिएट करिया पई बाय करिया पई एवडा होस तांकर सब फॉर्मेट गुडी को कॉमन फॉर्मेट बोली कहले हम एवडा सब बुझिबा एक्सएमएल एचटीएमएल एचटीएमएल ए बोली भाबरे करकी तेनु एया होची हमें आज सब कोन कोन आलोचना कला ठीक अछि हो ताले आज पई हमर एतिकी पुणी आउथरे केबे देखा आलोचना करवा धन्यवाद।